Hi guys, welcome back to my channel. If you're a returning subscriber, I am highly grateful and thankful for you. Thank you for coming back. But if you're a new subscriber, welcome to our family. And this is Kajol, and today I have a really interesting topic for you guys, which is how do I click my self-portraits. Now, most of you guys ask me this question like a billion times on my Instagram, on my Snapchat, ki how do I click my self-portraits, on what device do I click my self-portraits on, what settings do I use, which app do I use, or where do I edit them, what software do I use, and the list goes on and on. So I thought, why not combine all of these questions into this one video and answer them. Pretty smart, right? I know. So without any further ado, let's get into the video. Right there on top of the moon. The first question that I am often asked is how do I click my self-portraits. So basically I use my iPhone 11 Pro to click my self-portraits on. What do? I use the timer setting. Self-timer is your best friend, guys, if you want to click any type of portraits from the front camera or the back camera, doesn't matter. Self-timer is the best. Why? I'll tell you why. So self-timer gives you the time and this freedom to actually make crisp poses, crisp transitions from one pose to another pose, so that वो बीच में जो एकदम blur हो जाता है और वो सब कुछ होता है ना, that you don't get the time to actually change from this moment to this moment. तो वो वाली चीज़ है. Self-timer helps you in that. Now which setting do I use? I don't use the 3 second वाला self timer. I use the 10 seconds वाला. Why? Because the same reason. It gives me more freedom. मेरे को एक पोज से दूसरे पोज में चेंज होना easy लगता है. उसमें मेरे को ऐसे नहीं लगता कि मैं भागो ये किया वो वाली चीज़ नहीं होती. Self timer gives you the freedom to actually change from one pose to another without causing your photo to get blur or causing your photo to look अजीब सी. You know what I mean? So that's why I use the 10 seconds वाला timer. Plus 10 seconds वाले टाइमर का सेकंड बेनिफिट क्या है कि इफ़ यू आर चेंजिंग योर पोजीशन, यू चेंजिंग योर लाइक बॉडी लैंग्वेज, नॉट बॉडी लैंग्वेज, इफ यू चेंजिंग योर बॉडी पोज एंड एवरीथिंग, तो आपको टाइम मिल जाता है सोचने का कि अच्छा अभी मैंने ये किया है, इसके बाद मुझे ये करना है तो ये शायद अच्छा लगेगा. यू गेट दैट टाइम फ्रेम टू थिंक एक्चुअली. जबकि 3 सेकेंड वाले में क्या है, कट फोटो. तो दैट इज नॉट द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट. सो आई यूज द 10 सेकेंड वाला टाइमर. Coming on to, do I change any other settings in my phone? I change the AF lock wala thing, and I change the exposure with that. If you guys want, I'll post another tutorial on how exactly do I do the settings of my phone for my self portraits in another video. Comment down below if you want that video, of course. And yeah, so I just change exposure a little bit. अगर बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है तो I'll just down the exposure. I'll put the exposure down a little bit. और अगर नहीं है तो I'll just like turn it up. एक्सपोजर बेसिकली क्या है? एक्सपोजर है लाइट, कितनी लाइट आपको हिट हो रही है. एक्सपोजर और कंट्रास्ट बेसिकली वो चीज़ें हैं, लाइट का बैलेंस आपकी फोटोज़ के लिए, आपकी वीडियोज़ के लिए. सो दैट्स हाउ आई चेंज माई एक्सपोजर. ठीक है, उसके अलावा मैं कुछ और नहीं करती हूँ अपने फ़ोन में सेटिंग्स में चेंज. वाई? बिकॉज अगर मैं इसके अलावा कुछ भी चेंज करती हूँ तो वो मेरी एडिटिंग, लाइक जो मेरी स्टाइल ऑफ एडिटिंग है उसको हिंडर करता है. तो दैट्स व्हाई आई डोंट डू इट. ऑफकोर्स जो फिल्टर्स हैं आईफोन के, डू आई यूज़ देम if I'm clicking a photo with the friends or I'm taking a selfie, then I might use it. But अगर मैं normal self portraits ले रही हूँ उस टाइम पे I avoid using any kind of filters or any other setting for that matter. Why? क्योंकि मेरे को एडिटिंग हिंडर नहीं करवानी है. मेरे को अपनी एडिटिंग क्लीन एंड क्रिस्प चाहिए, जैसी मुझे चाहिए बिल्कुल वैसी ही, एक टोन ऊपर नीचे नहीं चाहिए. तो दैट्स व्हाई आई डोंट यूज एनी अदर सेटिंग्स. बस सेल्फ टाइमर एंड एक्सपोजर. Okay, getting on to the second question. Now second question is what device do I use? As I just told, मैं iPhone 11 Pro यूज़ करती हूँ. मेरे पास कोई और DSLR नहीं है, मेरे पास कोई और फ़ोन नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास वो ब्लूटूथ वाले बटन वाले टिक भी नहीं है. I only and only solely depend on this iPhone 11 Pro, and I'm also filming with the same phone right now. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैं फ्रंट कैमरा यूज़ करती हूँ कि मैं बैक कैमरा यूज़ करती हूँ. मैं हमेशा फ्रंट कैमरा यूज़ करती हूँ जब मेरा सेल्फ पर्पज़ है. अगर मेरे पास कोई फ्रेंड वगैरह है आसपास तो वो फोटोज़ खींच देते हैं, बट वो फिर सेल्फ पोर्ट्रेट नहीं है, वो किसी और ने खींची है. सेल्फ पोर्ट्रेट के लिए आई बेसिकली यूज़ द फ्रंट कैमरा. क्यों? क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि मैं कैसी लग रही हूँ बोलती हुई, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे हाथ कहाँ जा रहे हैं. बैक कैमरा से वो सब पॉसिबल नहीं है, तो आई यूज़ फ्रंट कैमरा ओनली.
नाउ अब आप लोग बोलोगे कि काजोल यू हैव एन iPhone 11 Pro so you can click good photos. We don't. We have Vivo, we have Samsung and this and that. I would like to tell you in on a secret guys is that कि इतना मतलब 80-20 का रेशियो ले लो, ठीक है। 80-20 का रेशियो क्या है? 80% डिपेंड करता है कि आपकी लाइटिंग सोर्स क्या है, आपकी लाइट आप कहाँ से ले रहे हो फोटोज़ के लिए। 80% उस पर डिपेंड करता है कि आपकी फ़ोटो कैसी आएगी। 20% इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपका डिवाइस कैसा है और उसमें कितना जो मेगापिक्सल कैमरा है, कितनी क्लैरिटी देता है वो कैमरा, दिस एंड दैट, वो सब कुछ सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? लाइट सोर्स। नाउ लाइट सोर्स मतलब क्या? I'll tell you. For this video, I'm using this ring light, right? Because why? Because एक तो I'm like filming indoors and मेरे घर में इतनी ज़्यादा sunlight मतलब इस रूम में इतनी ज़्यादा sunlight नहीं पड़ती है, तो that's why I'm using this ring light. But if you will see another video on my channel which is the blush pink makeup tutorial, I have filmed that same video with the same phone but in the sunlight बाहर, तो वो video की quality actually will beat any DSLR. That's what my opinion is. So I think कि sunlight बहुत मैटर करती है। सनलाइट जो नेचुरल लाइट का सोर्स है दैट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ लाइट। ये रिंग लाइट वगैरह की इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर आपके पास सनलाइट है तो। अब सनलाइट के साथ भी बहुत मिसकंसेप्शंस हैं, प्लीज़ हियर मी आउट। सनलाइट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग बोलो कि अरे काजोल बोल रही है सनलाइट में बहुत अच्छी फोटो आती है तो मैं जाकर दोपहर को 2 बजे खड़ा हो जाता हूँ और फिर फोटो खींचता हूँ। नहीं, प्लीज़ वो मत करना। क्यों? इसलिए क्योंकि जितनी ज़्यादा देर से आप सनलाइट में जाते हो, जो मिडिल ऑफ द डे की सनलाइट होती है, ये 2 बजे से लेके मतलब बेसिकली 11-12 बजे से लेके जो 3-4 बजे तक की सनलाइट होती है वो बहुत हार्श होती है। हार्श का मतलब क्या? उसका एक्सपोजर जो आपकी फ़ोटो पे आता है ना, वो बिल्कुल ऐसा होता है सफ़ेद फ़ोटो, दिख भी नहीं रहा होता कि क्या हो रहा है फ़ोटो में। तो उस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। फ़ोटोज़ किस टाइम पे लेनी चाहिए? 7 बजे से 11 बजे तक ले लो, अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी। शाम को 4 बजे से लेके जब तक अंधेरा नहीं हो रहा तब तक ले लो, अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी। बट अगर आप ये चीज़ बोलोगे कि यार मैं दिन में फ़ोटो ले ही नहीं सकता क्या, तो वो भी सीन नहीं है। आप दिन में भी फ़ोटो ले सकते हो, बट कैसे? यू नीड टू मेक श्योर दैट जहाँ पे आप हो, जिस पोजीशन पे आप हो, जिस सनलाइट में आप हो, वो डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही हो आपके ऊपर। अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होगा, फोटो गंदी आएंगी, पीछे शैडो कास्ट हो जाएगी, उस शैडो को कोई भी नहीं हटा पाएगा वहाँ से। तो मतलब फोटोशॉप वगैरह हटा देती है, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा हैसल वाला प्रोसेस है एंड वी क्लियरली डोंट वांट टू डू दैट। तो क्या करना चाहिए? तो व्हाट आई डू इज़ दैट, जैसे मतलब अभी मैं कॉलेज गई हूँ और क्लासेज ओवर हुई हैं, अब दोपहर का टाइम है, मेरे पास अभी फ़ोटो खिंचाने का टाइम है, तो मैं कहाँ खिंचाऊँगी? आई विल चूज़ अ प्लेस जहाँ पे शैडो आ रही हो, जहाँ पे ऑलरेडी मतलब बिल्डिंग की शैडो या फिर वो ऊपर टीन वगैरह गिरे रहते हैं ना, उनकी शैडो है, तो यू स्टैंड ओवर देयर। क्योंकि वहाँ पे क्या सीन है कि डायरेक्ट सनलाइट आपको हिट नहीं कर रही है, वो डिफ्यूज सनलाइट होगी, तो उसकी वजह से आपकी फोटोज अच्छी आएंगी। सेकेंड थिंग यू कैन डू इज दैट स्टैंड इन द बैल्कनी, मे बी स्टैंड इंडोर, जहाँ पे मतलब दरवाजा है बट सनलाइट आ रही है, बट यू आर इंडोर्स, तो उस पर भी डिफ्यूज सनलाइट आएगी, वहाँ पे आपकी फोटोज अच्छी आने के बहुत चांसेस हैं। ओके, और इतना बोल के मुझे अब प्यास लग गई है। कमिंग ऑन टू द तीसरा सवाल इज हाउ डू आई प्लान माई पोर्ट्रेट शूट्स। अब क्या सीन है कि बहुत लोगों को लगता है कि यार बहुत प्लानिंग जाती है, बहुत कुछ होता है, बहुत मेहनत लगती है, जो कि सच है, बहुत लगती है। बट एक बार अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन कर लेते हो, आप अपने दिमाग को एक पैटर्न बता देते हो कि देखो ये पैटर्न है, तुम्हें ये पैटर्न लर्न करना है कि आपको किस चीज़ से कैसे इंस्पिरेशन लेनी है और कैसे पूरा पोर्ट्रेट शूट रेडी करना है, तो आपके दिमाग को एक्चुअली आदत हो जाएगी विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ, whatever time, however much time you want, like your brain requires, but it will form a pattern, it will look at things, it will pick up an inspiration, it will create a concept in its own head, and you will be able to shoot good portrait photo shoots. Now talking about two main things. First, inspiration कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है। तो इंस्पिरेशन आप कहाँ से ले सकते हो? जैसे आप ऑलरेडी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं आउट देयर, बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं आउट देयर, बहुत सारे सेल्फ पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स हैं आउट देयर who are clicking good photos, who are clicking really mind blowing photos. So you can just go to their profile, you can go to my profile if you want to, and look at a photo and see okay fine, this is what I like, this is there, she's holding a book and a cup together and she's looking good over there, I want to recreate that. But recreate the photo,
don't copy the exact same photo. You need to put in your own imagination, your own thought process, your own creativity in it, because जो जनता है ना, अपनी पब्लिक है, पागल नहीं है, ठीक है. उनको समझ आता है कि आपने सेम चीज़ कॉपी करी है या फिर आपने अपना इनोवेटिव आइडिया डाला है उस चीज़ में. तो बी ओरिजिनल. यू कैन टेक इंस्पिरेशन बट डोंट कॉपी द एग्जैक्ट सेम थिंग. कि अगर आप सेम चीज़ कॉपी कर लोगे तो फिर आपको कौन फॉलो करेगा? उसे फॉलो करेंगे ना जिससे ओरिजिनल आइडिया आ रहा है. तो इसलिए ओरिजिनल चीज़ दो बार, ताकि ऑडियंस आए, ठीक है. तो यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द इन्फ्लुएंसर्स, फ्रॉम द सेल्फ पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स जो भी हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर आप पिंटरेस्ट से जो है इंस्पिरेशन ले सकते हो. आप पिंटरेस्ट पे बस जाके टाइप करो सेल्फ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी आइडियाज़, वहाँ पे अबंडेंस में आइडियाज़ आ जाएंगे जो भी आपको पसंद आ रही है. इंस्पिरेशन आपको लग रहा है कि हाँ जी यार ये चीज़ अच्छी है, ये मैं रिक्रिएट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या फिर ये मैं अपने तरीके से प्रेजेंट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ. देन यू गो अहेड एंड यू टेक दैट फोटो, यू सेव दैट फोटो इन योर फोन एंड यू रिक्रिएट द एंटायर एनवायरनमेंट एंड यू क्रिएट योर ओन फोटो विद योर ओन टच टू इट. क्योंकि हम सारे इंसान हैं, ठीक है, हम सारे क्रिएटर्स हैं. हमारे दिमाग में इट इज़ बाउंड दैट वी विल गेट आइडिया सिमिलर टू द अदर पर्सन एज वेल, बट it will definitely have the touch of your individuality, your own creativity, and that will be original. That's how you create original content, ठीक है. तो तीसरी चीज़ क्या है? इंस्पिरेशन कहाँ से आएगी? कि जो घर में पड़ा हुआ सामान है, जो घर में ऑलरेडी पड़ा हुआ सामान है, जैसे कि मेरे सामने अभी यहाँ पे ये दूध का ग्लास है रखा हुआ है, क्योंकि मैंने आकांक्षा के साथ एक वीडियो बनाई थी अभी. सो इफ़ आई वांट टू पोज विद दिस, हाउ विल आई पोज? See, all of these poses, these constitute to self portrait only. तो मतलब अभी मैंने सिर्फ ये ग्लास यूज़ किया है दूध का. जैसे कि अभी मेरे पास ये डायरी रखी हुई है सपोजिटली, अब मैं इसके साथ कैसे पोज कर सकती हूँ? All of these poses is what creates self portraits, right? तो आप कुछ भी अपने घर में सामान पड़ा हुआ देख सकते हो and you can get inspired with it and you can actually click good photos with it. वो आपके दिमाग को धीरे धीरे वायर अप अपने आप करना सीख जाएगा आपका दिमाग कि अच्छा मुझे ये चीज़ दिख रही है अपने सामने और इसके साथ मैं इस टाइप की फ़ोटो क्रिएट कर सकता हूँ. Now if you want another video where I can show you how you can take different objects from the house and how you can bring out a character or stuff like that, then just let me know, comment down below and I'll create a video for that as well. Okay, now coming on to the next thing, how do I plan on my shoots? इट्स नॉट लाइक कि हर दिन मैं खड़ी होती हूँ और बोलती हूँ अरे यार आज मेरे को पोर्ट्रेट शूट करना है. हालांकि मैं ऑलमोस्ट रोज़ पोस्ट करती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, मतलब शायद ही कोई दिन जाता होगा वेयर आई डोंट पोस्ट. मोस्टली आई डू पोस्ट एवरी डे, बट सपोजिटली मतलब व्हाट हैपन्स इज दैट आई ऑलरेडी हैव थॉट प्रोसेस इन माई माइंड कि अच्छा मुझे ये चीज़ क्रिएट करनी है. जैसे सपोजिटली ये जो फोटो है, ठीक है, तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी थॉट प्रोसेस होता है कि मेरे को किस तरीके से वो क्रिएट करनी है. आई हैव दी स्टफ टुगेदर विद मी, आई हैव द मेकअप ऑन, आई हैव द आउटफिट एंड देन आई विल क्लिक फोटोज एंड एडिट देम एंड देन पोस्ट देम. तो ऐसा नहीं है कि मतलब बस सुबह उठ के बस सीधे फोटो खींचने चल दिए. यू नीड टू हैव अ बैकअप इन योर हेड, यू नीड टू प्रोसेस, यू नीड टू हैव अ कंप्लीट थॉट एंड यू नो एन आइडिया कि आज मेरे को ये चीज़ के बारे में शूट करना है, ये चीज़ इसमें डालनी है, ठीक है. अब बाद में आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो, ऑब्वियसली शूट के टाइम पे और आइडिया आते रहते हैं तो आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो डेफिनेटली, बट इन द मोमेंट यू नीड टू हैव एन आइडिया क्लियर इन योर हेड कि ये मुझे करना है आज. रैंडमली अगर आप जाओगे तो फिर वो फोटोज भी वैसे ही रैंडमली ही आएंगी. कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन टू दिस वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है एंड डोंट वांट टू मेक इट टू लॉन्ग फॉर यू गाइज. तो फिर लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डू आई एडिट माई वीडियोज. आई बेसिकली लव Lightroom. I click most of my photos and then I immediately upload them to my Lightroom. I have the presets over there and उसमें already inbuilt भी काफ़ी presets होते हैं, but आप अपने according भी photos को edit कर सकते हो वहाँ पे. तो that's what I use. Lightroom is my favorite. I use Snapseed a lot. I use Ultralight a lot and sometimes I also use Facetune. At times not mostly, but थोड़ा बहुत कभी-कभी.
So that was it, and if you guys want another video on how to edit, then comment down below and I'll definitely edit a photo live in front of you guys with another YouTube video. So if you guys like this video, make sure you like it, you comment down below. If you want any improvement, any suggestions, any video ideas, anything, comment down below and subscribe to my channel. यहाँ कहीं subscribe button है, please subscribe to my channel, turn on the notification bell. And you can also follow me on all of my socials if you want to see more of this face, these dimples. Then you can follow me on all of my socials, my Snapchat, my Instagram, my Facebook. And yeah, so that was it about this video. I hope you guys liked it and I'll see you guys next time. Bye.